Hello students, welcome in social science class. Today we will discuss our next topic, the basic features of the constitutions. The India adopted the various features from the different constitution of the world, like the founding fathers of the Indian constitution tried to incorporate the principles cherished by the leaders of the freedom struggle, and they also tried to adopt the best feature of the constitution of England, USA, Canada, Ireland, etc. मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट बनाना चाहते थे. हर वो कंट्री के जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनके जो बेस्ट पॉइंट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उन फीचर्स को अडॉप्ट किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें ऐड कर दिया. So there are you can see in your book there is a flag. You can see flag and the feature what we adopted from the different countries, like the from British constitution we adopted the constitutional head of the state like Queen of UK. India's also the head of the state, that is called the president. The idea of preamble, what we had discussed in the earlier video, the idea of preamble, the introduction of the constitution, that idea we taken from the British constitution. The cabinet system, parliamentary type of government, bicameral legislature, Lok Sabha and Rajya Sabha, collective responsibility of council of ministers, Lok Sabha speaker, the privileges of the members of parliament. All these features were derived from the British constitution. You can ask the question 1 mark in the exam that from which country's constitution we adopted the idea of parliamentary type of government or the idea of cabinet. Like this, from the American constitution we adopted the feature of written constitution. Like the USA, Indian constitution is also written. We have the federal system, the head of the state. There will be head of the state. That feature is derived from the British constitution. But what it called president, that feature we adopted from the American constitution. Provision for a Supreme Court. Provinces are known as states. Rajya Sabha is in India represent the states like the US Senate. From Canada Constitution we taken the idea of Union of States, and from Ireland we have taken the idea concept of directive principles of state policy. The meaning of these features we will discuss later on. And from the Constitution of Russia, USSR, we have taken the idea of fundamental duties. Now let's discuss the basic features of our constitution. What are the salient features of constitutions? What are the key features? This question is more important in this chapter and it can be asked for the 5 marks. So listen carefully and try to understand. First feature is unique constitution. The main features, the chief characteristics of our constitution is that Indian constitution is unique. यूनिक का मतलब क्या होता है? जो सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों यूनिक कहलाता है? बिकॉज वी अडॉप्टेड द ऑल द गुड पॉइंट्स of several constitution and added to our constitution. हमने जो दुनिया के अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन उनके जो अच्छे पॉइंट्स थे, उनके जो गुड फीचर्स थे उन सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा बन गया, सबसे बेस्ट यूनिक बना. एंड एट द सेम टाइम the needs and aspiration of the people were also not ignored. इसका मतलब ये नहीं कि हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो अच्छी बातें वो ऐड कर ली और अपने देश के लोगों के एस्पिरेशन या उनकी नीड्स को ध्यान में नहीं रखा, उन्हें भी इग्नोर नहीं किया गया. और जो हमारे देश को बेस्ट बना सकते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट फीचर वी अडॉप्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज. दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन because it add the various good points of the several constitution. So next feature is the lengthiest constitution.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट एंड मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर लेंदी बात करें और फुल डिटेल हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया गया है, राइट डाउन किया है। और ये आगे 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड इट हैज़ 395 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स। और इसको बनाने में कितना टाइम लगा, जब इतना लंबा हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, कितनी मीटिंग्स हुई, हर एक पॉइंट को वहाँ बोल बोल के डिस्कस किया गया, लिखा गया, उसे बार बार चेंज किया, सभी आपस में उसे एग्री, जो जब होते सब एग्री तभी उसको फाइनलाइज किया जाता था, उसके हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस किया जाता था। एंड फाइनली एंड आफ्टर द 2 years 11 months 18 days it complete its final draft on 26 November 1949. When was the constitution final draft completed? 26 November 1949, but it was adopted and enforced on January 26, 1950. कंप्लीट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 26 नवंबर 1949, लेकिन इसे जब हमने अडॉप्ट किया या हम कह सकते इसे लागू किया, एनफोर्स किया, वो डेट कौन सी थी? 26 जनवरी 1950। यहाँ पर भी एक हिस्ट्री है बच्चे कि जब हमारा 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया था तो हमने क्यों 2 months के लिए वेट की, हमने 26 जनवरी को ही इसे क्यों अडॉप्ट किया? एंड वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी? 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, सिंपल बात, बिकॉज वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इन्फोर्स किया था और हमारे कंट्री रिपब्लिक बनी थी। बट क्वेश्चन इज दैट वाई वी ऑप्टेड द 26 जनवरी? You will read about this detail in the history chapter also. In December 1929, Pandit Jawaharlal Nehru was the president of Congress session at that time, and in that session our Indian took pledge for the complete independence. हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पहली बार देश के अंदर आज़ादी दिवस मनाया था और पूर्ण आज़ादी की कसम खाई थी। उससे पहले हमारे जो भारतीय थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, दे वर डिमांडिंग फॉर द सेल्फ रूल, वो स्वराज की मांग कर रहे थे। लेकिन 26 जनवरी 1930 को उन्होंने ये कसम खाई थी कि आज से हमारी लड़ाई जो थी वो पूर्ण आज़ादी की लड़ाई होगी। तो उस दिन उन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाया था। लेकिन इन रियलिटी हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? ऑन 15 अगस्त 1947। तो उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते थे जब हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त। लेकिन जब हमने पहली बार आज़ादी को फील किया और उस लड़ाई की कसम खाई थी, उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी जो 1930 में हमने बनाई थी, उस 26 जनवरी को रिमेम्बरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन को ही एनफोर्स करेंगे और उस दिन से हमारा देश जो भारत वो क्या बन जाएगा? रिपब्लिक बन जाएगा। दैट्स वाई वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन on 26 January 1950 instead of 26 November. So this was the history behind that date. Clear to all? So next feature is written constitution. Indian constitution is a written constitution. As earlier I told you, from which countries we have taken this idea? USA. Indian constitution is a written constitution. It was drafted and enacted by the Constituent Assembly, स्पेशली इलेक्टेड फॉर दिस पर्पज़। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी तैयार किया। ड्राफ्टिंग करने के लिए, ड्राफ्टिंग मतलब कि उसके लेआउट तैयार करने के लिए कि हम इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किस पार्ट में क्या क्या लिखा जाएगा, उसके लिए कमेटी बनाई गई जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिन्होंने वो सारा लेआउट तैयार किया। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। And who was the president of the Constituent Assembly?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो ये 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी was Dr. B.R. Ambedkar and President of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. So these are 3 features. Next feature is rigid and flexible. This feature is very important. And here separate question can be asked on this question. India's constitution is a combination of rigid as well as flexible. रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही जो वर्ड हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर, हार्ड, विच कैनॉट बी चेंज ईजीली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड बिकॉज इट कैनॉट बी चेंज ईजीली and it is a stable and guarantee against the hasty changes. मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इतनी लॉन्ग डिस्कशन के बाद बना है, जिसके हर एक पहलू पे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये नहीं कि जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी वो अपनी मन मर्जी से उसमें कुछ भी लिखा हो उसे जो है वो डिलीट कर दें या कुछ भी ऐड कर दें। ऐसे नहीं कि जिसका जो दिल करे वो लिख दे। इट कैनॉट बी चेंज ईजीली एंड इट्स अ स्टेबल गारंटी अगेंस्ट द हेस्टी चेंजेस। मतलब कि कोई अपनी मन मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकता, तो उस चीज़ की ये गारंटी है, ये कठोर है, वो चेंज नहीं हो सकता। कि इसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है, जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री या रिपब्लिक और सेकुलर, कोई इन जो बेसिक आइडियोलॉजी को चेंज नहीं कर सकता। और साथ ही साथ हम इसे कह रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, जो कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। फ्लेक्सिबल मीन्स इट कैन बी चेंज easily, it can be amended easily. Amended means the modification or changes in the constitution, that is called amendment. So our constitution can be changes or amended. So it is a progressive in nature. Due to the feature of flexible, it can consider a progressive in nature and helpful in the development of the nation. Means कि जब भी हमें ज़रूरत लगे देश के हितों को पूरा करने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या कंट्री के बेनिफिट्स के लिए हमें उसमें कुछ एडिशन करनी पड़े या मॉडिफिकेशन करनी पड़े, तो हम उसे कर सकते हैं। That's why it is called flexible. So Indian constitution is a combination of both rigid as well as flexible. यहाँ पर एक वर्ड और भी कहते हैं इसी फीचर के कारण, that Indian constitution is not a sacred document, it's a living document. Why it is called living document? Because it can be changed according to the changing condition, needs and obligation of the national or international ऑफ कंट्री। कि अगर हमारे कंट्री के नेशनल या इंटरनेशनल मैटर से रिलेटेड कुछ भी ऐसी बात जो हमें मॉडिफाई हुई, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1949 में बनकर तैयार हो गया और आज 2020 चल रहा है, तो क्या वो सारी चीज़ें सेम चल रही हैं जो उस टाइम थी? हमारी रिक्वायरमेंट या डेवलपमेंट, लॉट्स ऑफ चेंजेस देयर। तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कई बार हमें कुछ नया ऐड भी करना है, जो पहले लिखा उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा उन्हें इग्नोर करके नया को ऐड करना है, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं हम अमेंडमेंट। लेकिन अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इट्स नॉट अ ईजी टास्क, इट कैन बी डन थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर. Not everyone can do the changes in the constitution. There is a proper procedure to amend the constitution. This question can also ask for the 5 marks. First of all, by simple majority, second by special majority, and third one is special majority and ratification. Simple majority. Certain provision of the constitution can easily change by passing the amendment bill by simple majority. It means this bill should be approved by the majority of members present and voting in the both house of the parliament. जितने मेंबर पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी से, जितने भी प्रेजेंट हैं टोटल का जितने मेंबर वहाँ प्रेजेंट हैं, और उन प्रेजेंट में से मेजॉरिटी अगर कह देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें ये बिल जो है अमेंडमेंट का बिल पास करना है, तो वो पास हो सकता है उनकी वोटिंग के थ्रू. दैट इज़ कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी. सेकेंड, स्पेशल मेजॉरिटी. The amendment bill shall have to be approved by both the House of the Parliament
by the absolute majority of total membership and 2/3 majority of member present and voting. मीन्स जितने भी मेंबर टोटल मेंबर हैं, जैसे लोकसभा के अंदर 543 हैं और राज्यसभा में 250 हैं, तो उन दोनों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग करवाकर 2/3 मेजॉरिटी अगर कह देती हैं कि येस देयर इज़ अ नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दिस कैन बी हैपन. And third one is special majority and ratification. After the bill is passed by special majority of both house of the parliament, then it must be passed or approved by the 50% of member of legislative assembly के MLA. जितने भी टोटल स्टेट्स हैं हमारे 50% स्टेट्स के MLAs अगर कह देते हैं कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, तब वो जाकर बिल पास होता है और अमेंडमेंट होती है. इट मीन्स अमेंडमेंट जो हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट्स नॉट ईजी एंड नॉट एवरीबडी कैन चेंज दिस. So for the amendment there is a proper procedure has to follow. That's why it is also called the dynamic constitution. Indian constitution called dynamic constitution means it can be changes, it can be if needed for the country's development, there can be some provision to change. There is some example like abolition of privy purse, nationalization of banks, reservation for OBC, right to information, right to education, reservation of seats in the local self body for women are some examples which prove that Indian constitution is a dynamic. So it is a proof of our commitment to transform India into a truly secular, socialist, democratic and republic. That is our next feature of constitution, that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. This point, 5 points included. It can also be asked for the 5 marks, only this question. Why India called sovereign, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक? इन पांचों का अपना अलग अलग एक मीनिंग है जिन्हें अच्छे से समझना ज़रूरी है. वैसे आप सभी ने 7th क्लास में से समझ लिया. चलो आई लेट यू टेल यू अगेन. सॉवरियन स्टेट. सॉवरियन मीन्स व्हेन कंट्री इज़ फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल. इट मीन्स वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजन. इससे पहले क्या था, 200 साल तक ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया. हमारी कंट्री में रहकर हमारे डिसीज़न वो ले रहे थे, हम अपने डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे बिकॉज अदर कंट्रीज़ आर, फॉरेन कंट्रीज़ आर, एक्सटर्नल कंट्रीज़ आर इम्पोजिंग देयर विल ऑन अस. अपना वो डिसीज़न हमारे ऊपर थोप रहे थे. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि जब भी हमारी कंट्री आज़ाद होगी, हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे तो पहले इंडिया को हम क्या बनाएंगे, सॉवरेन बनाएंगे. मीन्स वी आर फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल. नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसी ऑन अस. वी आर फ्री टू टेक आवर ऑन डिसीज़न, कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं. कोई और कंट्री हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती. हाँ, हम वी कैन टेक द डिसीजन, वी कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम द अदर कंट्रीज. दे कैन गिव सजेशंस, बट इट डिपेंड ऑन अस टू फॉलो और नॉट टू फॉलो देम. सो इंडिया इज कॉल्ड सॉवरेन स्टेट. क्लियर? सेकेंड इज इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट because socialism is one of the national goals to be achieved. India is against exploitation in all the forms and will try to establish economic justice without being attached to any particular ideology. Means कि इंडिया का जो अब से जो गोल होगा सोशलिज्म, समाजवाद, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा. ऑल पीपल आर इक्वल. सभी इक्वली रहेंगे. ना वहाँ पर कास्ट के बेसिस, ना रिलीजन, ना इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा. और इंडिया हर उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा. दैट्स वाई इंडिया इज़ कॉल्ड सोशलिस्ट स्टेट. थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट. सेकुलर मीन्स देयर इज़ अ सेपरेट चैप्टर ऑन दिस टॉपिक, सेकुलरिज्म.
India is a secular state. It means there is not any official religion. We all are free to adopt एनी रिलीजन, कि हम सभी सिटीज़न को ये फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजन को मानना चाहें उसे मान सकते हैं, उसकी पूजा करना चाहें, उनके बिलीव्स को फॉलो करना चाहें, हम कर सकते हैं. नो गवर्नमेंट कैन फोर्स अस टू अडॉप्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और टू लीव एनी रिलीजन, कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं थोप सकते. देयर इज़ नॉट एनी ऑफिशियल रिलीजन. हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके जो भी प्रैक्टिसेस हैं, प्रोपागेंडास हैं, वो हम कर सकते हैं. लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हमारे से रिलीजन के नाम पर ना तो हमारे से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और ना ही हमारे से रिलीजन के नेम पर वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं. रिलीजन बेस पे हमारे पास एक फंडामेंटल राइट भी है, दैट इज़ कॉल्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ religion. So India is a secular state, means all are free to adopt any religion. Next is India is a democratic state. You all know very well this point, that there will be a government which is elected by the people and that represent the representative of the people, and they took the decision and run the government and follow the rules which are written in the constitution. And last one is republic. India is a republic. It means the head of the state. Head of the state किसे कहते हैं? President. Head of the state is a elected person among the people. जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है वो लोगों में से चुना जाता है, जो कि इनडायरेक्टली चुना जाता है, और उनकी जो पोजीशन है नॉट हेरिडिटरी लाइक द यूके. इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, क्वीन होते हैं या किंग है, क्वीन के बाद नेक्स्ट उनके जो होते हैं उनकी बेटी या आगे जो भी, वो क्वीन या किंग बनते हैं. उनके हेरिडिटरी है, मतलब एक ही परिवार के वो आगे अपने बेटे को या बेटी को आगे वो हेड ऑफ द स्टेट बनाते हैं. लेकिन इंडिया के अंदर वो क्या है, इलेक्टेड अमंग द पीपल. सो इंडिया इज़ अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. Next is parliamentary form of government. We have the parliamentary form of government both at the center and in the state. This feature we adopted from the British Constitution. Parliamentary democracy means powers are divided between the central and state government, and there is a close relationship between the legislature and executive. The Council of Ministers is constituted from among us the members of the legislature. Legislature कौन होते हैं? Organ of the government, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, जिनके जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर, आगे गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर से, एंड इट होल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यू टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर. जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी उनकी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, तब तक वो उनके पास पावर रहती है. इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड. नॉमिनल मीन्स कि जितनी भी पावर्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैक्सिमम पावर जो है वो किसके नाम पर है? प्रेसिडेंट के नाम पर. लेकिन उन पावर्स को रियल में यूज़ कौन करते हैं? Prime Minister. That's why President is called nominal executive. About this topic you will get the in detail knowledge in the further chapters of civics. Union executive, and the real powers are real exercised by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. So India has a parliamentary form of government both at the central and the state. Next is federal and unitary. Federal means the constitution of federation is written and rigid. When we talk about the word federal, it means when powers are divided between the central and the state governments, and that is the written in the constitution, and rigid, which cannot be changed.
कि जो हमारी कंट्री के अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स जो है क्लियरली डिवाइडेड है एंड दे आर क्लियरली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज रिजिड विच कैनॉट चेंज. And there is an independent judiciary which interpret the constitution and settle the dispute. और अगर कंट्री के अंदर किसी में भी चाहे वो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनमें कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, न्यायपालिका है, जो उनके डिस्प्यूट को सेटल करते हैं और बिना किसी के बाइस्ड हुए वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं. मीन्स दैट इज़ नॉट द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव. The central government, which is also called union government, is more powerful. That it appears that India is not a really federation but a unitary state. Federal and unitary both are opposite word. Federal means when powers are divided between the central and state government. बट इन यूनिटरी आइदर देयर इज़ ओनली वन लेवल, या तो वहाँ पर एक ही लेवल है, मतलब एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है. अगर कहीं पर वहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट. मीन्स जब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है तो उसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं. अब इंडिया में देखो क्या यूनिकनेस है. इंडिया के अंदर ये दोनों ही फीचर्स हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया इज़ अ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी. फेडरल मीन्स पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, लेकिन साथ ही साथ क्या है, यूनिटरी भी है कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है. इसके बारे में भी आप आगे चैप्टर आएगा यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें आप क्लियरली आपको समझ आएगी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वो लॉ बना सकता है. यूनियन लिस्ट में मेंशन है तो वो पावरफुल ज़्यादा है. सो इंडिया इज़ अ फेडरेशन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमारे फेडरेशन भी है कि पावर्स को हमने डिवाइड किया है, वहाँ पर हमारे लेवल अलग अलग लेवल्स हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये क्या है, यूनिटरी भी है. सो क्लियर. नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसके बारे में आप सभी को पता आई थिंक. इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 1950, तब हमारे कंट्री के सिटीज़न को हर उस सिटीज़न को जिनकी पहले ये एज कितनी थी, 21 ईयर्स. फिर 1988 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, 61st अमेंडमेंट, तब ये इसकी एज जो थी वो कम करके कितनी कर दी, 18 ईयर्स. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया whose age is 18 or above 18 has right to cast his or her vote without any discrimination. कि हर वो 18 ईयर्स का सिटीज़न, जिसे हम बालक या अडल्ट कहते हैं, उन्हें राइट टू वोट मिल जाता है अगर वो इंडिया का सिटीज़न है, बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, कास्ट एंड रिलीजन. And this is based on the equality, which is basic principle of democracy, and it enable all the citizen to be involved in the governance of the country through their elected representatives. Clear? Universal adult franchise. Next is single citizenship. सिंगल सिटीजनशिप मीन्स कि हम इंडिया के अंदर रहते हैं, क्या हमारे पास अलग अलग सिटीजनशिप है, एक हम इंडिया के सिटीज़न हैं वो, और एक हम हरियाणा, पंजाब या राजस्थान, गुजरात स्टेट के अंदर वहाँ के. नो, इंडिया हैज़ अ सिंगल सिटीजनशिप. मीन्स कि हम इंडिया में चाहे कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी स्टेट के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हमारी सिटीजनशिप एक ही है, दैट वी आर इंडियन. लेकिन यूएसए के अंदर कौन सी है, डबल सिटीजनशिप. मीन्स एवरी अमेरिकन इज़ अ सिटीजन ऑफ हर स्टेट एंड ऑल्सो द यूनाइटेड स्टेट्स. बट इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. Yes. In India, there is no citizenship in the name of the states.
so we can secure employment anywhere in the country. People call them some Punjabi, Marathi, Gujarati, but first of all we all are the Indians. Clear? And last is single integrated judicial system. Unlike the judicial system of USA, we don't have separate federal and state courts. हमारे ये नहीं है कि हमारे अलग अलग कानून व्यवस्था है, चाहे इंडिया में हम कहीं पर भी रह रहे हैं, पूरा जुडिशरी सिस्टम एक ही हायरार्की के अंदर है, लेकिन इसके वैसे लेवल्स हमने अलग अलग हैं जुडिशल सिस्टम के, कि सबसे टॉप पर जो है वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड देन हाई कोर्ट्स फॉर्म अ सिंगल इंटीग्रेटेड judicial structure with the jurisdiction over all laws. The high courts have the right to supervise over the subordinate courts. लेकिन जो लॉ सिस्टम है वो हमारा सेम रहेगा, जुडिशरी सिस्टम। हायरार्की है मीन्स कि सबसे पहले हम अपने जो कोई भी हमारा केस हम अपने लोकल लेवल की कोर्ट पे जाएंगे, अगर हम वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और वहाँ से भी हम सेटिस्फाई नहीं है देन वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, बट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द फाइनल एंड ऑल द लोअर कोर्ट्स हैव टू बी फॉलो इट। और इसके साथ ही क्या है, इंडियन जुडिशरी क्या वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या कि हमारी जो जुडिशरी है वो जब जस्टिस देते हैं विदाउट इम्पार्शल होकर देते हैं, कोई पार्शलिटी नहीं होती, और इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में आकर अपना डिसीज़न बदलेंगे, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ अपना प्रॉपर उसे डिसीज़न लेते हैं। और जब वो जज चाहे इफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसीज़न भी उनके अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि वो जब इलेक्ट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं तो अपनी क्वालिफ़िकेशन के बेस पर होते हैं, और उन्हें आसानी से रिमूव भी नहीं किया जा सकता। क्लियर? And last one, what the last feature of the constitution that include the fundamental rights, directive principle of state policy, and fundamental duties are the basic feature of Constitution of India that prescribe the fundamental obligation of the state to its citizen and the duty of the citizen to the state. Clear? So this is all about the basic features of Constitution, which are very important. Watch the video throughout, and if you find any doubt or any query, you can ask me on my WhatsApp number. Till then, goodbye.